Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है और आज हम बात करने लगे हैं BGT पे. It's dynamite. हाँ जी. हाँ यार, बड़ी देर से ये शो करना चाह रहे हैं हम और बहुत ज्यादा फरमाइशें भी आई हैं सारी. A lot of people in the comments were लाइव asking में us. तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस थे Yeah. BGT से Lots of related. questions regarding the BGT and also of course lots of क्या कहते हैं उसको requests in which people were like you must preview the series. तो हमने वैसे ही करनी थी यार. It's such a marquee series in the whole test calendar. Yeah. और अब सादी And on top of that World Test Championship के पूरा सारा सीन है इस पे. So very crucial series with respect to the World Test Championship final and qualification for that. But generally this is a rivalry, India-Australia, which has really grown over the last 2 decades. और अब ये एक है Premier Series, खास तौर पे Test cricket में, which everyone looks forward to. it's the Ashes and the BGT. Those are the two big ones. The two biggest. Yeah, as far as Test series are concerned, I'd say you're correct over there. और पता है, if you go back to the 90s and before that, there wasn't much hype around India versus Australia in Test cricket, but I feel the real turning point for the BGT was that 2001 Australia tour of India. Lakshman ने Yes. जहाँ पे The Kolkata test in which India were made to follow on and then Lakshman scored that 280 odd and then they won that game. So यार अगर तुम सोचो हमारे बचपन में ना हम इंडियन है ना हम ऑस्ट्रेलियन है, उस मैच की हाइलाइट्स पक गए थे देख के. सही बात है. जितनी दफा मैंने उस मैच की हाइलाइट्स देखी ना अपने बचपन में शायद ही किसी और मैच की देखी हूँ. रट गया था मुझे वो मैच. मतलब फॉलो ऑन हो के इस तरह का उस जमाने में तो it was unheard of. Yeah. We've seen that only a handful of times, right, in the history of Test cricket, and I think that's where it all started really, or it started to brew to the extent कि अब ये इतनी बड़ी series है. Of course, after that, India went to Australia, and Rahul Dravid in Adelaide scored that double. 230 odd मारा Something like that. और फिर second innings में भी 70 odd मारा था. Not out. Yeah. And India won that Test match and drew that series. Adelaide में था ना वो हाँ, match. दादा के अंडर वो खेल रहे थे और 1-1 मुझे जहाँ तक याद है वो सीरीज ड्रॉ हुई थी. And then of course in 2004 Australia beat India in India, yeah. which according to that team, Ponting वाली टीम, बल्कि नहीं, Ponting वाली थी वो, हाँ, जीता Ponting था वहाँ पे जाके. So they held that victory in very high regard. आज तक वो गिलक्रिस्ट वगैरह से पूछो तो वो कहते हैं that was their finest ever feat when they beat India in India. It's the Michael Clark 6 for 9 series. Yeah. Clark kind of announced himself with both bat and ball. 150 भी मारा था मुझे याद है इसने. Perhaps even on debut, I might be wrong about that, but बच्चा ही था तब माइकल क्लार्क. बिल्कुल नया आया था और बॉलिंग पड़ गई थी उसकी. बॉलिंग भी ऊपर से यार वो ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर तुम जरा सोचो, ग्लेन मैग्रा, Jason Gillespie, both of those guys did really well. 2004 was the one time Shane Warne did all right in India as well. वरना वो उसका बहुत ही खराब रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ both away and home. So yeah, I mean उसके बाद अगर आप देखो तो ठीक है बीच में कुछ सीरीज आई हैं where home teams would always win. Up until India went back to back in Australia. और पहली दफा तो आप एक आर्ग्यूमेंट या एस्टेरिस्क लगा सकते हो आप उस विन के साथ कि चलो यार अगलों के इसमें तो वार्नर थे ही नहीं, सही है, बट व्हाट अबाउट द लास्ट टाइम? उस वक्त तो इंडिया की टीम सारी फारिग हो गई थी. इंजरीज एंड शार्दुल ठाकुर एंड सुंदर कोहलीज चाइल्ड ड्यू टू व्हिच ही वाजंट अवेलेबल एंड कौन नहीं था उनके पास. एंड में तो अश्विन भी नहीं था, बुमराह भी नहीं था, नटराजन खेल रहा था फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल, एंड देन ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल. रहाणे वाज द कैप्टन, राइट? I reckon, yeah, he was. Shubman Gill और ऋषभ पंत won them that dramatic final test match at the Gabba, जो ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस था. जो बड़े फेमस कमेंट्री भी है जिसकी टूटा है गाबा का घमंड. नहीं, और ऊपर से टिम पेन और उसकी बातें, we'll see what the Gabba. स्लेजिंग और सारा कुछ. अश्विन को बोला था ना, we'll see what the Gabba. अश्विन ने भी आगे से कोई बड़ा फिट रिमार्क दिया. Yeah. So tempers are always flaring in the BGT. बड़ी एक heightened emotions वाली सीरीज होती है. Both teams really want to win it, and now India over here have an opportunity to go and three-peat. Yeah, three-peat करके history create कर सकते हैं. That would be insane. Although उधर ऑजीज तपे हुए हैं, काफी तपे हुए हैं. They also pound for pound look like the better team than India right now because India are dealing with a couple of injuries and वही availability से कुछ issue हुआ which we'll come into. But point is कि इन 20 सालों के अंदर जहाँ पे stature चला गया ना इस एक सीरीज का, honestly like I think only the Ashes beats it on marketing and hype. And even quality that you can make an argument कि शायद इसकी Ashes से बेहतर हो. You never know. Yeah, because both of these teams they go absolutely at each other.
I'd rate them equally at this moment in time. They are the top 2 test teams in the world right now. हाँ. Despite India's just recently getting swept at home by New Zealand. और Australia मतलब ठीक है वो भी गैबा पे फिर से हारे New Zealand. Sorry, New Zealand कह रहा हूँ West Indies से. Yeah. But when you look at both those squads, this is as good as it gets. दो अगर मुझे बेस्ट साइड्स चुननी हो, हाँ, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया यही दोनों हैं. एक डिफेंडिंग चैंपियंस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, और इंडिया फिर दूसरे साइड पे डिस्पाइट रिसेंटली फाइनली गेटिंग बीटन एट होम. You know, if you look at the last decade, they are the best test team. एब्सोल्यूट डोमिनेशन. मतलब कमाल. ऑल्दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीते, फाइनल्स में पहुंचे हैं वो. और लेकिन ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखा जाए सीरीज बाय सीरीज, आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर टीम देन इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली वो जो कोहली का पूरा एरा था. ओह माय गॉड मैन, कोहली की जो टेस्ट कैप्टनसी का दौर था ना, दैट वाज प्रॉब्ली द मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट दैट आई हैव एवर विटनेस्ड. यार बात करते करते एकदम मेरे जहन में सवाल आ गया. जहन में दिमाग बोलने लगा. अच्छा. सवाल, इज कोहली देयर बेस्ट एवर टेस्ट कैप्टन? So this is a very interesting one, right? I feel like Dada didn't have Kohli's resources, but Saurav Ganguly was really immense. good, yeah. और मेरे ख्याल से जो इंडिया की जो कह लो ना आप डोमिनेशन या डोमिनेंस का पीरियड स्टार्ट करने वाला एक कैटलिस्ट था. So basically revolution लाने वाला. हाँ, रेवोल्यूशन लाने वाला मेरे ख्याल से दादा था. He was the guy who went on and post match fixing and all of that told this team कि हमने जाकर लड़ना and we have to start winning games and stuff like that. And you know, he unearthed guys like Virender Sehwag, Yuvraj Singh, Zaheer Khan. Throw Bhaji in there as well to a certain extent, right? And Bhaji was huge in India BG team. ठीक है, so I feel like that's where it all kind of kick-started. Dhoni took that one step forward. पर अगर तुम धोनी का एरा देखो ना, धोनी का टेस्ट रिकॉर्ड हाँ इतना खास नहीं है. ODI was amazing. He lifted everything. ODI limited overs was good, great. I'd say great. Yeah. Test wasn't that good. Yeah, so whilst he did lift the mace, a lot of that had to do with India's home record. ठीक है, और ये थोड़ा एक कैवियाट आ जाता था पुरानी वाली टेस्ट चैंपियनशिप में, या चैंपियनशिप तो थी नहीं, बस नंबर 1 को बेस मिलती थी, तो उसमें ये एक थोड़ा सा सीन था. बट इफ यू लुक एट यू नो धोनीज रिसोर्सेज एज वेल, तुम देखो जरा बॉलर कौन थे धोनी के पास. प्रवीण कुमार और कौन है, मुझे याद कराओ जरा. ईशांत था शुरू था, और ईशांत मतलब बाद में अच्छा हुआ. बाद में शुरू में बड़ा गंदा करियर जा रहा था उसका, बहुत बुरा करियर. फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उससे. तो धोनी had a bit of Zaheer as well. Zaheer, हाँ, back end of his career. I don't know how much of Irfan he had, but he must have had a bit. इरफान था. क्योंकि देखो ना, टेस्ट क्रिकेट में तो धोनी को फौरन कप्तानी नहीं मिली. कुंबले के बाद धोनी बना था. Remember? Kumble was also test captain for a bit. So I mean, yes, you can make an argument कि धोनी in test cricket wasn't the same beast as captain, but I would make an argument that Virat Kohli had better resources as well. Was that down to Dhoni setting up a team or Kohli setting up a team? I think setting up a team में you'd have to give Dhoni credit, और एक general जो consistency आ गई थी ना, और not only consistency in performance but consistency in selection. और मतलब Indian cricket had matured under MS Dhoni, and they kind of unlocked a new mode जहाँ पे ये controversies etc नहीं होती थी, और आपकी टीम जरा स्टेबल थी. What Kohli did was he infused this, you know, we have to win games of test cricket mindset, and we have to win away. And he won. Yeah, and he did. He won, man. और हमेशा विराट कोहली से जब टेस्ट क्रिकेट का सवाल करते थे, वो 20 विकेटों की बात करता था. यार मैं एक सेकंड इसका रिकॉर्ड देखूंगा. इसका है फिनोमिनल रिकॉर्ड. हाँ नहीं, I know कि इससे ज्यादा विंस किसी की नहीं है एज कैप्टन, बट आई नीड टू कंपेयर. You might as well check his away wins as well, because I feel like that's the really important one over here. मैं पूरे इंडियन कैप्टन्स का रिकॉर्ड देख. हाँ चलो देख लो. And you know विराट का ये था कि fitness was paramount, right? Winning test matches was paramount. 20 wickets were paramount, and he was a very attacking captain in the sense कि he'd go batter short. और वो बॉलिंग अपनी पूरी खिलाकर अगली टीम को आउट करने के चक्रों में पड़ा होता था. सो आई फील लाइक यू हैव टू गिव हिम हीप्स ऑफ क्रेडिट एज वेल. मे बी द स्टेज वाज सेट फॉर हिम आफ्टर सक्सेसफुल टेन्योर्स फ्रॉम दादा एंड धोनी, बट विराट टुक देम टू द नेक्स्ट लेवल. वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचे थे धोनी के साथ, एटलीस्ट इन टेस्ट क्रिकेट तो नहीं पहुंचे थे. ODIs और T20s में आप कह सकते हो दे वन एवरीथिंग. But yeah, even in T20 Sadi, after that first win T20 World Cup की, अब जाकर आपको इंडिया नजर आ रही है as leaders of the format. Yeah. You know, बीच में काफी वक्त नहीं भी थे. इंग्लैंड का एक दौर है बीच में बहुत बड़ा. अच्छा, गंगूली 49 मैचेस में कैप्टन था, 21 जीता था, 13 हारा था. That's pretty good. धोनी 60 मैचेस में कैप्टन था, he won 27, lost 18. Okay.
Kohli's 68 matches, 40 wins, 17 losses. That's insane. Yeah. That's flat out insane. और कौन notable captain? Azruddin 47 matches, 14 wins, 14 losses. वो जरा जमाना भी फर्क था, ड्रॉज ड्रॉ ज्यादा होते थे. जिस तरह इधर देखो, अगर तुम गवास्कर सनी जी किधर है? सनी जी 47 मैचेस में कैप्टन थे, 9 विंस है, 8 लॉसेस है, बट 30 draws. Yeah, so it's an eras thing at that point. अब तो आपको ड्रॉ देखने को नहीं मिलते, बारिशें भी हो जाएं, टीम्स रिजल्ट फोर्स कर लेती हैं. इधर पिंडी की पिच पे बेन स्टोक्स ने भी रिजल्ट निकाल लिया था, याद है? So I mean, Test cricket has evolved. Test batting has evolved, right? Batters play their strokes now. No one kind of dead bats a session anymore or plays for a draw. And the World Test Championship also has to do a lot with this, Saadi, because points at stake. Points at you know, stake. so dead rubbers भी खत्म हो गए, draws भी खत्म हो गए. So I'm really happy with the evolution of Test cricket. But 100%. Virat Kohli was a bit at the forefront of all of it, right? अच्छा, मजे की बात, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ. रहाणे का फिनोमिनल रिकॉर्ड है. अच्छा. 6 मैचेस में कैप्टनसी की है, 4 जीते, 2 ड्रॉज. वाह, unbeaten Ajinkya. So was Chris Srikanth unbeaten. 4 matches, 4 draws. Oh well, I mean that is not the same thing. Yeah. But रहाणे का वो एक street cred हमेशा रहेगा उसका कि BGT जीता है वो ऑस्ट्रेलिया में. और उस point पे I remember people even started making the argument, is he the best captain India never had and all of this stuff, and I was like, okay, relax, Virat is having a child, but Virat Kohli. Yeah. अच्छा, खैर, I'd go on a limb and say he is India's most important test captain. ये तो कह सकते हो. I can't deny that because वही मैं बात कर रहा हूँ ना, फिटनेस वाली और 20 विकेट्स वाली, और वो एक जो डिमांड थी अपने प्लेयर से कि यार हमने टेस्ट मैच जीतना है, होम हो या अवे हो, हमने जीतना है. हमने ये अवे स्ट्रीक जो है ना इंडिया की, जो हम घर पे जीते हैं और अवे नहीं जीते, उसको खत्म करना है. विराट मैनेज दैट, एंड दैट्स व्हाट कंप्लीटली चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेट इन व्हाइट्स. They started to, or at least started to appear as that, you know, juggernaut जिसको हराना बड़ा मुश्किल है. और आज तक वो, despite them being swept, it still kind of holds. And even though India is looking a bit light over here, you and I cannot confidently say over here कि वो जीत नहीं सकते इसी. जीत सकते हैं, वो बिल्कुल जीत सकते हैं. क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास उसका प्रेसिडेंस है ना. Certain things would have to go their way. I feel like if India are to win this Border Gavaskar trophy, Jasprit Bumrah needs to be the best bowler amongst both sides. ये शायद होना उनके लिए जरूरी हो, and he needs to be fit and firing. 5 टेस्ट मैच शायद खेलने पड़े. And they need someone like Kohli or Pant or Jaiswal to really step it up. My guy is Rishabh Pant over here. हाँ, क्योंकि थोड़ी सी मुझे, स्पेशली क्योंकि शर्मा नहीं है ना फर्स्ट मैच में, तो थोड़ी सी लाइट हो जाती है, और गिल भी नहीं है. हाँ यार, that's a big loss. Very unfortunate for India because Shubman Gill was one of their most informed batters coming into this Border क्या Gavaskar उसकी trophy. 2024 में एवरेज 2024 में टेस्ट एवरेज है उसकी, in which he was batting at first drop, by the way. This is important because that was a shift for him. Opener से first drop आया था. He averages or is averaging 47.4 with the bat in this calendar year. So that's quite good. You know, in a team where Rohit is out of form, Kohli is out of form, you know, Pant is punting. वो एक वैसे बहुत बड़ा बोनस है इंडिया के लिए कि despite going through everything that he did with the accident and all, right? Life-threatening accident, right? The car blew up not too long after, and एक पता नहीं उसका नी का कोई सीन था जो उसने किसी को बोला किस तरह उसको वापस करो. बिल्कुल, मतलब नी तो उसका शैटर हो गया. बिल्कुल शैटर हो गया था. So for him to come back the way he has, you know, won the T20 World Cup and played some very important knocks over there. Very important. पाकिस्तान वाले मैच में भी आता है. He was the one along with Akshar जिसने वो गेम का complexion change किया. And now he made his return to Test cricket versus Bangladesh and then New Zealand. और यार इन 5 टेस्ट में अगर कोई एक स्टैंड आउट परफॉर्मर था ना विद द बैट इंडिया का, ऋषभ पंत था. Consistent. Yes. Consistently perform किया उसने. And the best part is that consistency comes despite his brand of cricket, which is aggressive. He takes the bowlers on. Risks लेता है, लेकिन उसका बहुत ही high reward मिलता है. I would say after Jasprit Bumrah, India's most important player in this series is Rishabh Pant. 100%. मैं तो यही समझता हूँ. And I'm not throwing shade at the other stars. I'm just saying कि ये 2 players जो है ना, इनको ये सीरीज जिता सकते हैं. Match winners हैं. Match winner तो definitely है. और along with Kohli, he's a match winner. I mean, after the heroics of Gabba, right? No. Pant has earned that tag. कि मैं हूँ match winner. उसने बोला भी था कि मैं ड्रीम करता होता था कि मैं इंडिया को मैचेस इस तरह के जिताऊं. वो जिता के it's all manifestation आदि. Strong willed और you know पक्के दिमाग वाला कैरेक्टर है. Bro, mindset होता है ना आपका. सारा mindset. देखो, कोई भी प्लेयर हो, पंत को हटा दो, कोई भी और प्लेयर हो, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, उसकी स्किल जितनी भी लिमिटेड हो वो नहीं कर सके. I'll take this one step further. कोई भी प्रोफेशन हो, तुम और मैं ही क्यों ना हो, 100%. you need the right kind of mindset to progress and upskill and get better, and if you strive to be the best, तो फिर तभी आपके अंदर वो परफेक्शनिज्म वाला एलिमेंट आता है. इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो मेरे दिमाग में एकदम आई है, that was मिसबाह उल हक. बिल्कुल. टेस्ट क्रिकेट में
wasn't the prettiest batter out there. No, and wasn't the prettiest captain either. Did not have that technique. ठीक है, लेकिन he had that mindset कि मैंने करना है. 4-5 शॉटें थी मिसबा के पास. Literally. Made the most out of them. हाँ. And he's ended his career with a 45 plus test average, which I think is quite good, right? Quite good, yeah. And Misbah is for a player with such limited shots. बिल्कुल. यार गिन लो तुम, एक स्लॉग स्वीप है स्पिनर को, एक वो थर्ड मैन से निकालता था, यूं करता था, एक सीधा छक्का मारता था. हाँ, एक वो उसकी पैडल थी जो उसने खत्म कर दी. हाँ. He stopped doing that. और क्या था? He could sweep, but he wasn't Yunus Khan. हाँ. No, obviously. By no stretch of the imagination was he even close to बात ये है कि जितना भी लिमिटेड स्किल सेट हो, अगर आपका माइंडसेट नहीं ठीक ना, तो आप नहीं सक्सेस. एक मिसबा की वो भी शॉट थी, वो जो ट्रिक शॉट थी, याद है? वो स्वीप जा रहे फिर ये करते. Yeah, so खेल लेता था, स्वीप वैसे खेल लेता था मिसबा. We're being a touch too cruel over here. But point is that he was someone जो लिटरली अपने दिमाग से ना इतना अच्छा करियर कर गया. Of course मेहनत भी होगी, फिजिकल उसने बहुत एक्सर्शन की होगी, ट्रेनिंग वगैरह. वो भी माइंडसेट के बगैर नहीं आ सकती मेरे लिहाज से. हाँ, अभी मैं भी देखो, तुम लगे हुए हो डाइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट करना है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर माइंड. मेरा वो माइंडसेट ही नहीं हो रहा, मैं कह रहा नहीं करना है. आप अपने दिमाग को किसी भी चीज पे ट्रेन कर सकते हो, ठीक है. एंड मिसबा आल्सो ब्रॉट प्रोफेशनलिज्म टू पाकिस्तान क्रिकेट बिकॉज ही वाज अ थरो प्रोफेशनल, ही वाज अ सीजन्ड कैंपेनर, और पढ़ा लिखा था. उससे भी फर्क पड़ जाता है यार. एमबीए था मिसबा के पास. मिसबा की बहुत लंबी बातें करने लगे, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है, मगर इट इज a bonus. You can't deny that. लेकिन जरूरी नहीं है. खैर वापस आओ, किस चीज की बात कर रहे थे हम? पंत की बात कर रहे हैं. पंत और बुमराह, two most important players for India. It's very very unfortunate that Shubman Gill is gone. Fractured his left thumb, I believe. Nets में शायद. Nets थोड़े फर्क भी होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही बॉल जरा उठता है, तो that will be a loss. देखो रोहित शर्मा, of course congratulations to him and his wife on the birth. Congratulations. बहुत बहुत मुबारक हो आपको रोहित पाजी. और I am all for active cricketers taking time off for family. 100%. मैं तो इसके साथ पूरा सहमत हूँ. So I don't think कोई बुरा सीन हो गया. I know Sunny G was very vocal about how Rohit shouldn't even be captaining India, right? If he's not in the first test. Well, I mean, I think it's fine. I think he should come back and captain. कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. Jasprit Bumrah will be captaining India this test match. His second test match as captain. Yeah, that'll be very very exciting. Cummins and Bumrah. Yeah, I like that. कोई मुफा ने या किसी ने लिखा हुआ था कम बॉल वर्सेस बम बॉल. मैंने कहा यार माफ कर दो प्लीज, स्टॉप इट. एक तो वैसे ही जो कुछ भी लिखते हैं ना दोनों, क्रेजी जॉन्स और मुफा, वो कैप्स में लिख देते हैं. विराट कोहली हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया. विराट नहीं, नील आर्मस्ट्रांग हो गया. पॉइंट. और पहले से पहुंचे हुए थे वहां पे, A टीम खेल रही थी उनकी, जिसमें से है भी उनके स्क्वाड में प्लेयर. अभिमन्यु ईश्वरन भी तो था. अच्छा, मजे की बात है, ये कम बॉल वर्सेस बम बॉल जो है ना, ओरिजिनली यूज हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के लिए. अच्छा, टेम्बा बबूमा का बम. ओके, ये तो बम बॉल हुआ ना, क्योंकि बुमराह है, वो बम बॉल था. हर चीज पे बॉल लगाना जरूरी नहीं होता यार, पता है. I've kind of reached my limit with all the balls. आकिब बॉल is बस खत्म. उससे पहले खत्म हो जाना. हाँ, खत्म उससे असली तौर पे शादी पहले ही हो जाना चाहिए था. ये आकिब बॉल हमने बड़ा फोर्स किया अंदर. It is so forced. But anyway, coming back to the series, of course, massive series in terms of World Test Championship final qualification. Now, India, हमें तो लगता था कि they'll walk to the final. They lost. 3-0. They got swept at home versus New Zealand. No one saw that coming. और अगर कोई है जिसकी ये प्रेडिक्शन थी तो मुझसे आके मिले. Please. मैं आपको कोई तोहफा दूंगा. नहीं. Make us millionaires. Yeah, please. आगे कोई टिप दे दो, हम भी कुछ करते हैं. मैं कनाडा वाला अकाउंट है मेरा. तो yeah, I mean, now this has complicated things a bit for India because they require, either to win 4 games out of 5. या तो फिर अगर सीरीज जीत जाते हैं, then they will also look at other results to go their way. But it's put India under a lot of pressure. क्योंकि अगर ये जीत कर आ रहे होते तो ये अपने आप को fully express कर सकते थे. अब ये थोड़ा शायद cave in कर जाए, but you can't really say that because India have a tendency to surprise us. You know what the problem is though, Saadi? They right now for the first test match at Perth, Optus Stadium, in which we expect the fast bowlers to get some purchase, right? यहाँ पे तो हम expect करते हैं कि fast bowlers को अच्छा खासा juice मिलेगा. Perth, although not the Wacka anymore. Optus Stadium है, लेकिन फिर भी इधर बाउंस जो है ना बहुत ज्यादा होती है. अभी हमने वनडे में देखा. And of course Test cricket is a bit different, but I do expect at least in the first innings, fast bowlers, first innings for both teams, fast bowlers should get a lot of purchase. Now India
don't look too strong in that first test match. They do not have their opener/captain in Rohit. They do not have their number 3 batter Gill. in Shubman Gill. They do not have Mohammad Shami to partner Bumrah, who might make his way Might into make the his way, series yeah. अगर उसकी फॉर्म ठीक रहती है. अभी रणजी खेल रहा है. रणजी खेले और विकेटें भी ली. चार विकेटें ली थी उसने एक इनिंग्स में. उसने he's made a strong start because he's been out of action for over a year. Nah. Right? So ये 3 मेन लोग नहीं. उसके बाद यार नंबर 6 की जो आपका स्लॉट है, समझ नहीं आ रही किसको खेलना चाहिए. यू नो, यू हैव द लाइक्स ऑफ केएल राहुल हु हैज एक्सपीरियंस बट नो फॉर्म अंडर हिज बेल्ट, और वो तो लीव करते हुए वो अभी बोल्ड भी हुआ. I don't know. They just might need to play Rahul up top. They might have to play Rahul either as opener or first drop, क्योंकि इस वक्त शायद और ऑप्शंस Dhruv नहीं. Jurel भी है. He was good in Australia. Yeah, so- A games हाँ, में. इंडिया ए की जो गेम थी या 2 गेम्स थी, उसमें ध्रुव जुरेल impressed a lot. भारत सुंदरेसन was full of praise. Yeah. Everyone was, you know, singing Dhruv Jurel's song. So he is a potential option at number 6. And then of course you could just, you know, show some faith in Sarfaraz. I know कि वो spin का बेहतर player है and he didn't have the best of series अभी, or the end of that series New Zealand वाली. पहले में तो पहले में तो 150 मारा. उसके बाद थोड़ा ड्रॉप ऑफ कर गया and he looked cooked by the end of it. But I mean, एक आपका प्लेयर है जो डोमेस्टिक परफॉर्मर रहा है, तो उसको अगर मौका देते हो आप, तो आई डोंट थिंक इट्स द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड. आई थिंक पीपल माइट बी स्लाइटली अंडररेटिंग हिम. ऑफ कोर्स ओनली टाइम विल टेल Yeah. कि वो ऑस्ट्रेलियन बाउंस के खिलाफ किस तरह कोप करता है, बट आई स्टिल फील लाइक सरफराज इज अ सॉलिड बैट. अच्छा ऐसा करते हैं ना, अभी हम इंडिया का स्क्वाड में अनाउंस कर देता हूँ. अच्छा, ठीक है. अनाउंस कर रहे हो तुम? मतलब बता देता हूँ ना लोगों को जिनको नहीं पता. हाँ, श्योर. ठीक है. और फिर ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड कर लेते हैं. उसके बाद फिर लाइनअप्स बनाते हैं कि तुम क्या खिलाओगे फर्स्ट. Yeah, sure. ठीक है ना. अच्छा, इंडिया स्क्वाड रिएक्शन देने आगे. Rohit Sharma, who is not available for the first test. Big miss for the first test. Bumrah, who will captain in the first test. Probably the best bowler across both teams. Yashasvi Jaiswal. I am looking most forward to watch Yashasvi Jaiswal bat in Australia. Abhimanyu Easwaran. Finally gets his shot, and I think he should be starting in that first test. I don't know, man. Australia A games में he wasn't up to the He mark. might not have been up to the mark, but it's not like India are like, you know, they spoiled for have- choice over here. कुछ बन सकती है फिर. Opening slot में कोई इतना बंदा नहीं है. Gill is injured, Gill is unfortunately. injured, right? वरना तो Gill was fantastic. Kohli. Kohli is, he Kohli. loves playing in Australia, man. Kohli What, is what Kohli. else can I say? KL Rahul. Is only in the squad at this point because he can bat 1 to 6. Ah, That's probably the only reason. ये है ना utility उसकी. Yeah. वो बहुत ज़्यादा versatile है. हाँ, ऋषभ पंत. Rishabh Pant is a superstar. सरफराज खान. Again, I'd be tempted to play him. मैं कहता सरफराज धोखा नहीं देगा. ध्रुव जुरेल. A lot of people are very excited about Dhruv Jurel. रविचंद्रन अश्विन. Would love to see how many games Ashwin gets out of 5. पर्थ में खेलेंगे पता नहीं. पता नहीं, मुश्किल लग रहा है. जडेजा. Ravindra Jadeja is probably number 3 in terms of most important players for India, no? I don't know. बैलेंस वो प्रोवाइड करता है. He has an average in Australia. 4 मैच ही खेला ऑस्ट्रेलिया में, मगर 43.75 की बैटिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया में, and he's taken 14 wickets in 4 games in Australia. I don't know. So he फॉर्म आखिरी टेस्ट में अच्छा था. 10 for लिया उसने अभी. हाँ. I would play Jadeja ahead of Ashwin if it comes down to one spinner. सिराज. Out of form. आकाशदीप. Yet to see what he's capable of. प्रासिद कृष्णा. Interesting pick. हर्षित राणा. Youth and exuberance. नितिश कुमार रेड्डी. तो Proper wild card over here. A lot of people thought कि हार्दिक पांड्या को शायद ले जाएं, but they've gone for Reddy, and he could provide India with a lot of balance. He could be in ready. theory. He could be ready. He could be potentially ready, but वही अभी देखते हैं क्या लाइनअप बनती है. And Washington अति सुंदर. अति सुंदर है यार. Washington तो बॉय है हमारा. रिजर्व्स भी हैं मुकेश कुमार, नवदीप सैनी एंड खलील अहमद. सारे bowlers ही हैं. हाँ. So clearly, Pacer. if some like Things bowlers goes out, or yeah. if a pacer is doing terribly, then they could potentially replace that pacer. Yeah. और शामी को भी भूलो मत. शामी अभी There is every हाँ. likelihood of क्या him आ coming जाएगा? back into the squad 5 mid-series. टेस्ट है यार. हाँ, mid-series 3-4 में भी आ सकता है. आ सकता है. So yeah, I mean, देखो first 11 बनाना इस वक्त पहले टेस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि जाहिर है आपके 3 प्लेयर नहीं है बहुत बड़े, और अच्छा. एक आपका स्पॉट पूरा वेकेंट है. बनाओ. बनाते तो यार मैं तो ईश्वरन को दे रहा हूँ ओपनिंग विद जायसवाल. आई डोंट सी एनी अदर ऑप्शन. I'd play Rahul. यू प्ले राहुल, देन फर्स्ट ड्रॉप पे कौन जुरेल डाल रहे हो? फर्स्ट ड्रॉप का तो मसला है. वही तो मैं राहुल को फर्स्ट ड्रॉप पे डाल रहा जायसवाल, था. राहुल. ideally want Jurel to play. And अच्छा एक सेकंड, फर्स्ट ड्रॉप अभी मैं वेकेंट छोड़ रहा हूँ ना. चलो नीचे से शुरू करें, वो और भी मुश्किल है, क्योंकि बुमराह के बाद मुझे पता नहीं किधर जाना. अब मुझे लगता है खेल रहा है अपना प्रासिद कृष्णा. प्रासिद कृष्णा को दे रहे हो. हाँ, he had a but- good game versus Australia A. और
पर्थ है, थोड़ी सी वो स्किडी है, उसकी बाउंस करती होती है बॉल, तो आई थिंक ही नीड्स टू प्ले इन Perth. They've got a few hit the deck hard kind of bowlers. The problem is that there's a big gulf between Bumrah and the next best pacer. Siraj is a rhythm bowler. अगर उसका नहीं लगा हुआ rhythm तो वो I'd play him in the first test, वरना बहुत light हो जाएगा. Experience डालना Even थोड़ा though सा. Harshit Rana is really good, Akashdeep is really good, लेकिन पहले टेस्ट में तो मैं सिराज को. चलो रिवाइंड. ओपनिंग में तुम डाल रहे हो केएल राहुल और जायसवाल को, मैं डाल रहा हूँ अभिमन्यु ईश्वरन और जायसवाल को. फर्स्ट ड्रॉप पे मैंने डाला हुआ है केएल को, तुमने भी कोई भी नहीं डाला हुआ. अभी कोई भी नहीं डाला. 4 पे कोहली, ये 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे I want to go with Sarfaraz and reward him. I'd go with Jurel. You'd go with Jurel. That's not a terrible pick either. A lot of people might agree with you. और पता है अच्छा खेल रहा है Jurel. I'm just saying कि अब अगर सरफराज को आपने रन ऑफ गेम्स दिया ही है तो यार उसको ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करके देख लो. अगर चल गया तो फिर तो आपके बहुत ज्यादा मसले हल हो जाते हैं. You know? अच्छा खैर 7 पे अपना जडेजा. ठीक है. 8 is the tricky one now. Where do you go from here? I'd go with Also 6 पे तुम नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिला सकते हो. I'd go with 6 पे जुरेल, 7 पे रेड्डी, 8 पे जडेजा, 9 पे बुमराह, सिराज एंड कृष्णा. Yeah. A first drop. I would be tempted to go Akashdeep over Krishna just because he's played a bit of cricket for India abhi recently and I've seen some good signs like वो भी hit the deck hard kind of bowler है और उसको भी कृष्णा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर है. वहां पे पर्थ की पिच पे अगर मैं देखूं ना, मुझे लगता है कि कृष्णा से ज्यादा वैल्यू मिल सकती है इन कंपैरिजन टू आकाशदीप. There's no easy answer over here, but I do like what you've done over here with respect to fitting नीतीश कुमार रेड्डी in, क्योंकि आपको थोड़ी बॉलिंग में भी डेप्थ मिल जाती है और बैटिंग में तो आपको लातादार डेप्थ कह रहा हूं मैं, डेप्थ मिल जाती है. कर्जा तो नहीं मिलता. Maybe we I don't know. Also मैंने डेप्थ क्यों बोला? It's debt. यार एक सेकंड, रेड्डी की पोजीशन है क्या? रेड्डी ज्यादा तो नहीं खेला होगा फर्स्ट क्लास यार. मे बी आई एम एंटायरली रॉन्ग, मे बी ही हैज प्लेड अ लॉट फर्स्ट क्लास, बट ही इज अ यंग लैड. ही इज इन हिज अर्ली 20s फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल. He's 21. And I like him. He's yeah, 21. I like him. अभी उसने recently इंडिया के लिए T20 में बड़ा अच्छा खेला था. I was impressed with him in the IPL. IPL में बहुत impressive था ना, इसलिए I just want to see कि वो कौन सी पोजीशन पे खेलता है. Also, Pat Cummins would know a thing or two about नीतीश कुमार रेड्डी. सादी उसका प्लेयर है सनराइजर्स के लिए. So ये किसके स्टैट्स आ रहे हैं? किसके स्टेट खोल दिए तुमने? T20 है ना. हाँ, तो जब वो तू उसके रेगुलर पेज पे देख फर्स्ट क्लास कितनी खेली है. फर्स्ट क्लास इसने खेली है 23 मैचेस खेले. अच्छा, so not like nothing but not a lot. He's got an average of 21.05 with the ball. Bat. Okay, that's not too inspiring. With the ball, he's got an average of 26.98, 56 wickets हैं इसकी. If they keep him in the side to bowl the dog overs, I'm fine with that. ठीक है, क्योंकि नई बॉल तो नहीं दोगे ना नीतीश कुमार रेड्डी को, उसको तुम लाओगे 65th ओवर में. 65th. You know what I mean, right? उसको स्पेल तब दोगे जब तुमने वेट करने के एक और नई बॉल. I might have to go with Eastman at top and put down Rahul at first drop. टॉप 3 हमारा सेम है. सेम होना पड़ेगा क्योंकि अब मैं वॉशिंगटन सुंदर को फर्स्ट ड्रॉप तो नहीं खिला रहा. नहीं वो तो ज्यादा हो जाएगा. हालांकि रणजी में उसने भी 150 मारा है फर्स्ट ड्रॉप पे. खिला दो फिर. नहीं देखो, केएल राहुल हैज टू प्लग गैप्स नाउ बिकॉज दैट्स व्हाई ही इज इन द साइड. एंड गंभीर इवन मेंशन्ड दिस, और हम भी कई दफा कह चुके हैं कि यार ऑल थिंग्स सेड एंड डन, माना कि केएल राहुल हैजंट लिव्ड अप टू द प्रॉमिस. आप देखो ना कि एक्सपीरियंस भी है और इस लेवल की यूटिलिटी कि उसको कहीं पे भी आप स्टॉप गैप सोल्यूशन बनाकर फेंक सकते हैं. एक इनिंग्स चाहिए बोयवाजे का वापस. और अभी उसने साउथ अफ्रीका में 100 मारा था. So उसको थोड़ा टाइम हो गया ना. It's just that dismissal we all think back to India A वाला जो ये स्पिनर पे लीव करते हुए बोल्ड हो गया था. मतलब he hasn't had the best of the past 6 months. I feel like he struggles mentally as well. But also this could be a breath of fresh air in terms of like कि चलो यार I've got nothing to lose. इंडिया के पास और ऑप्शंस नहीं है. दिस इज माई टाइम टू शोकेस माई स्किल्स एंड जस्ट नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग. करता ना ये इसने क्या ये किया था इसने, ये इसकी सेलिब्रेशन थी. वो वाला सीन फिर हो जाए केएल के साथ. और आई होप मैन, बिकॉज ऑनेस्टली आई लव केएल राहुल. मुझे बहुत पसंद है. मुझे भी अच्छा लगता था. इज वेरी अट्रैक्टिव बैट, वेरी रिस्टी बैट. लेकिन वही पोटेंशियल पे लिव अप नहीं किया तो थोड़ा सा दर्द होता है, दुख. हाँ, और ऊपर से मुझे ज्यादा पता है दुख क्यों होता है. Not so much with respect to potential पे live up नहीं किया, but he completely gets blasted by Indian fans. Social media hates KL Rahul. Basically वो उसकी गलती भी ना होना तब भी उस पे बैश. वो उसने भी बदतमीजी करी थी राहुल के साथ, संजीव गोयनका ने, लखनऊ वाले ने. ये कोई हरकत तो नहीं, आप ये ड्रेसिंग रूम के अंदर करो जो करना है, आप टीवी के सामने क्या कर रहे हो. So hopefully man, this is
the moment for his career जहां से वो turn around करे. अच्छा, so let's reiterate Saad and my 11. Okay, we've got Jaiswal, Easwaran and KL Rahul top 3. Then Kohli and Pant obviously. हाँ. फिर 6 पे either you go Jurel or either you go Sarfaraz. You're playing Sarfaraz, I'm playing Jurel. I wouldn't mind either. हाँ, obviously. But yeah, I would be keen to see what they do. हाँ. 7 पे आ गया Jadeja. I'd play Reddy. Jadeja is a better bat than Reddy. I don't know. I think he is. IPL में तो अच्छा खेल रहा था, फर्स्ट ड्रॉप पे भी हाँ, खेला मगर था. जडेजा का भी मैंने तुम्हें बताया 4 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में उसकी 43.75 की एवरेज है. लेकिन रेडी बहुत अच्छा खेला था आईपीएल में यार. जो भी 7-8 जडेजा एंड रेडी. फिर बुमराह ऑब्वियसली, एंड देन यू गॉट 2 पेसर्स इन व्हिच साद वांट्स टू गो सिराज एंड कृष्णा, एंड I know Siraj brings experience, but I would just kind of take a gamble and play both Akashdeep and Krishna. See which one's better, and then if Shami comes back, I know who my third pacer is. हर्षित राणा यार चेक करो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड हर्षित राणा का. अच्छा तो है हर्षित राणा. I'm not saying he's poor. Might be throwing him in the deep end far too soon though. That's my only worry with Harshit Rana, right? वरना तो we all think he's a very fantastic talent. उसका slower one बड़ा पसंद है मुझे, मगर slower one उसका काम नहीं आना ना. टेस्ट मैच में काम आएगा. He was absolutely sensational in the IPL. यार बड़ा मजा आया था. उसने डेथ ओवर्स बड़े अच्छे कराए थे. 10 मैचेस खेला. 43 wickets and 24 की average. Yeah, not bad, Sadi. That's pretty decent. He's decent. He's picking up 4.3 wickets a game, and if he picks 4.3 wickets a game in this test match, then India would take it. So दो fifers भी हैं उसके अंदर, 3 fourers भी हैं. A lot rides on India's stand-in captain over here. Jasprit Bumrah will have to carry a lot of this weight. अच्छा, मुश्किल काम है यार वैसे. But you know what? India have in the past started slow in the Border Gavaskar Trophy and to the point where they were 36 all out. And they've gone on and won that series जहाँ पे एस्टेरिक ऑस्ट्रेलिया पे कि तुम लोग इस इंडिया से हारे हो जिनके सारे प्लेयर्स इंजर हो गए थे और 36 पे ऑल आउट किया था उसी सीरीज में. Yes, after that they came back strong. So I mean it's a very interesting and tantalizing context in that regard कि there's so many subplots. And even if India, let's suppose they lose in Perth, that by no means that their BGT is over. They could come back strong. I do expect Jasprit Bumrah to take at least, if he is to play 5 test matches, ठीक है, I expect him to take at least 30 to 35 wickets. अच्छा वो आएंगे एंड पे. मिनिमम की बात कर रहा हूँ 30 to 35 wickets. Predictions पे एंड पे आएंगे. ठीक है. अच्छा अभी मैं जरा जूतों का प्लग इन कर दूँ. हाँ जरा shoes and housers दिखा दो. Shoes and housers आ गए आपके पास. The originals. Yes sir, the originals. यार फिर से मैं वो वाला ही जूता ले आया हूँ. ये वैसे प्यारा जूता है यार. काला ब्लैक नाइकी. Beautiful shoe man. Very pretty. देख लो जरा बैक साइड भी दिखा दो इसकी. मुझे तो पीछे से भी नीचे से भी पसंद है. अरे नीचे तो देखो. पीछे तो देख. अच्छा so theoriginals.com.pk पे जाके आपको जो भी जूता पसंद आता है वो लें. और लेने से पहले वहां पे डिस्काउंट कोड डाल दें ProSports10. ये इधर भी लगा दिया सामने आपके ProSports10. जाके बाय करो और एंजॉय करो. 10% डिस्काउंट है. Absolutely. और उसके अलावा बिराम तुम्हें पता है इन जूतों की खासियत क्या है? यार मुझे तो बहुत ये खूबसूरत बिजनेस वेंचर लगा बिकॉज व्हाट दीज गाइज डू एट द ओरिजिनल्स इज दैट दे टेक प्री-लव्ड शूज, नॉट यूज्ड और सेकंड हैंड, प्री-लव्ड जिनको पहले भी प्यार मिला हो, एंड नॉट लाइक used for a long time. Slightly used. उसको भी refurbish करते हैं. Then they refurbish those shoes and then they sell them on a discounted price. और आपको तो further discount मिल रहा है. तो यार आजकल की इकोनॉमी में you take every discount you can get. And honestly ये अगर जूते आप प्रॉपर स्टोर से जाकर खरीदो नए नवेले तो इतना बड़ा डेंट पड़ जाता है ना आपकी वॉलेट में कि वो फिर अगले 2-3 महीने आपको फील होता रहता है. सो दिस इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. आई फील यू कैन गेट योर एयर फोर्स वंस एंड नॉट फील टेरेबल अबाउट इट लेटर आइदर. नहीं बहुत फिट जूते साइट पे जाके देखो तो सही पसंद आ जाए. या मुझे तो काफी इनके जूते पसंद आए एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू सी दीस सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप वेंचर्स हु आर बीइंग स्मार्ट, यू नो. एंड पाकिस्तान में तो यार खास तौर पे इस वक्त आई नो यू गाइज लव टू बाय शूज, एवरीवन डज, बट इट्स गॉटन अ बिट हार्ड. सादी मैं अभी इस शो के बाद जा रहा हूँ जूता लेने और मुझे डर लग रहा है. अच्छा वैसे तुमने शार्क टैंक पाकिस्तान देखा है? यार अभी मैंने शुरू नहीं किया यार. Very impressive. I know those guys. यार हमारी एक जूनियर था उज़ैर. I saw him in some clip. हमारा सीनियर था हसन बेग. So उनका Move It जो है वो आया शार्क टैंक पे. Shout out to those guys. I'm really looking forward to watch that pitch. हाँ नहीं it was a good pitch. बहुत इंटरेस्टिंग. अच्छा हाँ खैर यार हम कभी जाएं शार्क टैंक पाकिस्तान. अच्छा बापी क्या जाना है. पिच तो क्रेजी होगी आगे का नहीं पता. अच्छा चलो पिच इन्हें भी मार देते हैं अपने जानीज को. ऑफ कोर्स आप लोग जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं थ्रू 2-3-4 ways. सबसे पहला है Patreon.
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसके अलावा ईजी पैसा के थ्रू 0319360255 इज़ द नंबर. अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लें मेरे से, या प्रो स्पोर्ट्स को DM करें ट्विटर या इंस्टाग्राम पे. बेराम को ना कीजिएगा, मुझे ना करना. मैं डिटेल्स भेज दूंगा, फिर साइन अप कर सकते हैं. एंड यू विल बी एडेड इनटू द डिस्कॉर्ड चैट जानीज ऑफ द पॉडकास्ट. मैं भूल गया था क्या था, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट. तो वहाँ पे हमसे बातें करें और कम्युनिटी से बातें करें. और एक बंदे ने कल ये चीज़ रेज की हुई थी, इट्स ओपन टू एवरीवन. मतलब सिर्फ ये वाला स्पेसिफिक चैनल जो है ये जानीज के लिए, बाकी हमारा प्रो स्पोर्ट्स का पूरा डिस्कॉर्ड चैनल है, वहाँ पे several communities आके enjoy करें. And whilst I do give preferential treatment to the Janis, ऐसी बात नहीं कि मैं किसी और chat में आकर कुछ बोल नहीं सकता. तो you can still get to converse with us, but obviously if you're a Jani of the podcast, आपको special treatment तो देंगे. यार obviously तू बताना भूल गया. If you live under a rock, अगर आपके पास online भूला नहीं था मैं, मुझे बात याद आ गई थी. तो बात याद आ गई. अगर तो online banking आपके पास नहीं है तो यार मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं. इधर E113 में हमारा दफ्तर भी है, ऑफिस एंड स्टूडियो. सो हमारे मुंह पे आकर 1500 रुपए मारे, ठीक है, तो हम आपको एक महीने के लिए जानी बना देंगे पर 1500. एंड देयर आर अदर वेज एज वेल. यू कैन बाय अस एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी. क्रिकेट की हो सकती है मगर पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, ठीक है. इट कुड बी एनी डोमेस्टिक साइड, इंटरनेशनल साइड, ऑथेंटिक और स्पोर्ट्स जर्सी, कोई भी स्पोर्ट, कोई भी टीम, जस्ट नॉट पाकिस्तान क्रिकेट. एंड वी विल मेक यू अ जानी फॉर 6 months पर जर्सी. एंड आई हाईली encourage you to become जानी to the podcast because we are moving away from sensationalism और ये मसालादार खबरें, ठीक है. मैं और साद we are on a mission to change the landscape of sports coverage in Pakistan and we are promoting intelligent cricket discourse. Already जो हमारी community build हो गई है छोटी सी जानीज की, it's very academic, very learned, बहुत ही मजा आता है. यहाँ पे बड़े तमीज़ के दायरे में सारी बातें होती हैं. देखिए हम आपका cricket watching and sport watching experience enrich करना चाह रहे हैं through the chat and the podcast. Come enrich ours as well. We're not know-it-alls. We can be challenged. Come debate things with us. तमीज़ के दायरे में. तमीज़. No abuse, discrimination, misogyny और racism will be tolerated. बार सीधा काट देंगे आपको. और यार ये जो फंड्स हैं ये साथ और मेरी जेब में नहीं जाते. वी डोंट पॉकेट देम. दीज फंड्स गो टुवर्ड्स मेकिंग दिस पॉडकास्ट फाइनेंशियली फीजिबल. एंड इफ दिस पॉडकास्ट इज अ फाइनेंशियल सक्सेस देन वी कैन मेक और ब्रिंग इवन मोर ग्रेड ए स्पोर्ट्स कंटेंट टू योर स्क्रीन्स. और गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं. हम हमेशा ओनरशिप लेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे इसी शो पे. आप भी अकाउंटेबल रखो हमें, हम भी रखेंगे अपने आप को. मगर प्रॉमिस आपसे किया है कि यार एज फार एज होमवर्क, तैयारी एंड प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड और कोई कसर नहीं छोड़ी. फुल तैयारी एंड हैशटैग सीधा टेक ओवर. ठीक है, 2 साल में जब प्रो स्पोर्ट्स बहुत ऊपर आया होगा ना, आप भी खुश होगे कि यार मैं एक पायनियरिंग मेंबर था जानी ऑफ द पॉडकास्ट. सीख गए हो तुम, 2 साल बोलते हो. या 10 को मैंने 2 कर दिया. अब 1 पे आएंगे. आधा साल. अच्छा, तो इंडिया की तो काफी हद तक बात कर ली है. स्ट्राया पे आ जाए. Straya mate. One big miss before you even get to the squad is Cam Green. Cam Green नहीं. Yeah, it's kind of messed everything up for them. Balance जो है ना पूरा, या balance भी गया और बैटिंग ऑर्डर भी. Gary Balance. Yeah, Gary Balance. वो भी गया. वो तो लंबा ही गया. नहीं, वैसे वो जिम्बाब्वे के लिए आ गया था वापस. और गया. वो रिटायर कर गया, मगर he got to play another test match, right? Even after that entire debacle. But anyway, Cam Green की absence में ऑस्ट्रेलिया को 2 झटके लगे हैं. एक तो बैलेंस को थोड़े झटके लगे कि he could bowl a lot of overs and बाउंसरें अच्छी मारता था वो, और 4 पे बैटिंग कर सकता था. और एक और मसला ये हो गया कि they've now had to reshuffle their batting order. So they're going to bring in an opener which is going to be Nathan McSweeney. ठीक है, सिडनी में जब खेलेगा तो he'll be Nathan Sydney McSweeney. यार अभी स्क्वाड बताने दो ना यार. हाँ आ जाओ. कैप्टन पैट कमिंस. Oh, Superman. Scotty Boland. The wobble ball specialist and MCG hero. Alex Carey. He is in a lot of form apparently, but excited about series career. Josh Hazelwood. What can I even say? One of the best in the business. Travis Head. Also someone who would be raring to go. Josh Inglis. Might not get a game with Carey around. I don't know. But good. He just captained Australia's limited overs teams. काफी हाईली रेट करते हैं सर. बुरा नहीं है. पुल भी अच्छी, कट भी अच्छी. स्क्वायर ऑफ द विकेट बड़ा अच्छा खेलता. Uzi Khwaja ने एक बयान दिया है कि when it comes to thinking about Bumrah or facing him, I'm not thinking of not getting out. I'm thinking about where I'll be scoring my runs. So he's sent out his क्या कहते हैं statement. That's a cojones वाली statement. Cojones on Bumrah है भाई, मजाक नहीं है. Uzi Khwaja right there. Marnus Labishiri. Not in the best of form. Big series for him. Nathan Lyon. Nice, Keza. Nice, Gary. Mitch Marsh might have to roll his arm over. In the absence of Cam Green.
Nathan Sydney McSweeney. Nathan Sydney McSweeney. McSweeney. I'm looking forward to watching him bat. He was very like he was a strong candidate to open for Australia. Everyone was on Nathan McSweeney's side. लेकिन की नहीं हुई उसने आज तक open हाँ, यार. नंबर 3 और 4 इस टाइप का पोजीशन का बैटर है, मगर अभी इंडिया के खिलाफ ही स्कोर्ड 80 odd and he looked really good, so that's why they've got him as opener. Steve Smith. Steve Smith तो he loves India. Yeah. उनके खिलाफ खिलाते रहो स्टीव स्मिथ को. अब देखते हैं क्या करता है. फॉर्म नहीं लगी हुई बॉय की. And इंडिया के खिलाफ आ जाएगी फॉर्म. And finally, Mitch Starc. Mitchell Starc. पिंक बॉल टेस्ट है कोई? I don't think so. अगर तो है, चेक कर ले. अगर तो पिंक बॉल टेस्ट है तो मिचेल स्टार्क की सारी विकेटें जो है ना उसी टेस्ट में आनी है. वैसे होगा सादी 5 मैचेस की सीरीज में एक होगा. चाहिए होना. Might be the Adelaide one. देखते हैं. या चेक कर लो, टाइमिंग से ही तुम्हें आइडिया हो जाएगा. That might change a few things because Australia are really यार damn कैसे good. टाइमिंग से अंदाजा हो जाएगा मुझे इनका. Is there a pink ball test? लिख लो. वो है ना सही इनका. सही हो नहीं. चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, सयोनी. ये मैंने वो आगे वाला सयोनी का है. आई हैव बॉट यू अ लॉट ऑफ टाइम. कैन यू लुक फॉर द पिंक बॉल टेस्ट? नहीं मिल रहा मुझे. शायान और वरुण से पूछ लूं मैं. पता नहीं कितना टाइम लगेगा. खैर आई थिंक होगा. पिंक बॉल होना चाहिए. अच्छा, मुझे भी लगता है एक्स्ट्रा मैच प्रैक्टिस स्केड्यूल्ड इन कैनबरा ahead of the crucial second test in Adelaide, जो कि पिंक बॉल है. Oh, there you go. So that's a day-night test, and that's where you should really look out for Mitch Starc. हाँ, Adelaide. चलो यार, टाइमिंग्स अच्छी हो जाएंगी हमारे लिए. हमारे लिए बेहतर हो जाएंगी. That'll be nice, yeah. यार बाय द वे मिल नहीं रहा सारा स्केड्यूल. लिख सकता है कोई यहाँ पे, बेशक इंडियन टाइम्स हो, कि किस दिन कहाँ पे क्या टेस्ट मैचेस है. कमेंट्स में लिख. वैसे क्यों नहीं मिल रहा तुम्हें? यार अभी नहीं मिल रहा ना. Why doesn't Cricinfo have it? अभी नहीं मिल रहा ना. अच्छा, तो अभी तो वो तुम्हें बता भी नहीं सकते ना. तो जब तक तुम्हें वो बताएंगे साथ ही तुम्हें खुद पता चल गया होगा. नहीं, मैं नहीं करूंगा ना. अच्छा, रिसर्च सही है. आप लोगों पे साथ भरोसा करूंगा. आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं. अच्छा, खैर, स्क्रीनशॉट लूंगा. Barring the little Cameron Green thing, this is a really strong Australian side. हाँ. And they're at home and they are raring to go in the sense कि उन लोगों ने बिल्कुल भी 3-peat नहीं होने देना. This is one of the most important series for them. वो इसी से आ रहे हैं. अच्छा, और बाय द वे हमने इंडिया की तो बात की कि उनको क्या करना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए. ऑस्ट्रेलिया कैन इल अफोर्ड टू लूज दिस सीरीज बिकॉज व्हाट इफ दे लूज इन श्रीलंका? दे कुड लूज इन श्रीलंका. Which is quite possible. प्रभात जयसूर्या लड़ सकता है आपको श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर. सो इट्स नॉट लाइक यू नो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही क्लियर रोड टू द फाइनल यहाँ बनी हुई है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस सीरीज फॉर देम इन एवरी एस्पेक्ट as far as pride is concerned, because 3-peat नहीं खाना. और दूसरी चीज यार, they want to play this final, they want to defend their trophy. So I feel like they are favorites. Yeah. I know ये थोड़ा शायद disagreement भी आया इसके ऊपर because Indian fans feel really passionate about their team playing in India, but if I am to look at this objectively, I feel like Australia are the stronger team. Not by an awful lot, but they are the stronger team. रुक जाओ, predictions पे आने हैं एंड पे हमने. ठीक है ना. अभी बनाते हैं लाइनअप इनकी. अच्छा, उनकी तो बन जाएगी खुद ही. नेथन मैक्सवीनी एंड उजी ख्वाजा ओपनर्स. लबशेन वन डाउन. नहीं, लाबस काखनी. हाँ, मार्नस वन डाउन. स्टीव स्मिथ 4. हाँ, 5 पे आ गया आपका मिचेल मार्श या ट्रैविस हेड. सॉरी, ट्रैविस हेड 5, मिचेल मार्श 6, Alex Carey 7, and then you've got Starc, Hazelwood, Cummins, Lyon. मसला पता है कहाँ आ रहा है? There'll be a bit more load to be shared for all the 4 bowlers because Cam Green is not available. But Mitch Marsh will have to roll his. Not to the extent that Cameron Green would have. Cameron Green आपको ज्यादा ओवर दे सकता था. Mitch Marsh आपको बीच में शायद 2-3 ओवर दे दे. He's injury prone as well. They will not want to risk Mitch Marsh. वो Australian player of the year है पिछले साल. और अभी वापस आए इंजरी. हाँ, the Bison. So they would want to, you know, जरा gingerly नहीं, क्या कहते हैं? Hole treat करेंगे. They'll wrap him up in cotton wool a bit because they can't afford another injury over here. It's not like Australia's bench is stacked. उनकी first team stacked है. लेकिन ये खैर squad उनका first test के लिए. हाँ, ये भी है. तो their lineup kind of creates itself. That's not much of an issue, and I feel like next venues पे आ जाते हैं. पहला मैच पर्थ. Yeah, Perth में conditions aside, just the fact that India have so many people missing, I think Australia favorites to win that one. मुश्किल लग रहा है मुझे इंडिया के लिए भी. एक तो बॉलिंग अगर कंपेयर कर लेना सिर्फ, आई फील ऑस्ट्रेलिया वेल प्रिपेयर्ड पर्थ की पिच के लिए. ऊपर से दे वुड हैव वांटेड दिस फर्स्ट टेस्ट टू बी इन पर्थ ताकि वो थोड़ा रैटल कर सके इंडिया को, थोड़े बाउंसर शाउंसर मारे, यू नो, शॉर्ट बॉल के खिलाफ टेस्ट करे उनको.
Yeah, I mean, I think Australia will take a lead in the first game, just because India have a couple of stars missing, and then of course, you never know. Bumrah could completely rip the opposition apart. He is that guy, you know. हो तो सकता है लेकिन उसके लिए तो ना surface matter करती है, ना opposition matter करती है, कुछ भी matter नहीं करता. I still feel it's big ask Perth के. It is a big ask. I would say Australia to win that one. Adelaide में तुमने कह दिया pink ball test है. Stark फिर is मैं check. at his best with the pink ball, man. उसका record जो है ना day night test में, it is death defying. Like और- it's crazy. और तुम्हें पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था Adelaide में 36 all out भी हुआ था last time. स्टार्ट से 9 AM है ना, तो फिर भाई पिंक बॉल ही है. पक्का pink ball है. हाँ. 100%. 100 P. हंडो पी. Yeah. So ट्रेवर जी याद आ गया मुझे. Trevor G. Zimbabwe का एक player है Trevor G. Go Google him. हाँ अभी अच्छा. स्क्वाड में आया. Yeah, आप जाकर चेक करना, then you'll get the joke. Gabba आ गया उसके बाद. Traditionally an Australian fortress, but they have been defeated by both India in the Rishabh Pant game and then the Shamar Joseph game. Shamar Joseph. West Indies के खिलाफ. Maybe India can win this one. Maybe Shami comes back. Maybe Shami comes back. That would change a lot. Rohit coming back, albeit him not being in form is a worry, but फिर भी वो रोहित शर्मा है. Obviously. है तो वो रोहित. Obviously. ठीक है. By the way, Adelaide में कोहली बड़ा चलता है उस्ताद. Isn't this where he scored those twin hundreds? Yeah. I think it might be. कौन यार वो याद है नया नया कप्तान बना था और इसने ट्विन हंड्रेड्स मारे थे और नहीं जिता पाया था इंडिया को. ऐसा कुछ हुआ था. Adelaide. I might be completely mixing this stuff up, but I remember Kohli dominating Adelaide or the Adelaide Oval, and he absolutely loves to bat in Australia. So if there is going to be one last peak in Virat Kohli's career, it's got to start here. It has to. Yeah. I mean, the writing is on the wall. Of course, he's not peak Kohli anymore. मगर उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि he can turn it up for this test series, especially a test series that matters so much to India. कि यार उनकी qualification is riding on the line and they have to win the series. But yeah, I'm quite sure वो Adelaide में ही कोहली ने किया था शादी. एक सेकंड. Twin hundreds. हाँ. Adelaide था. Adelaide. Yeah. 2014. So, you never know. Even though pink ball है, कुछ नहीं पता भाई. Kohli might be able to turn it up over there. Kohli might be able to turn it up. Mitch Stark is going to be at his devastating best. Yeah, Gabba में पंत भी आ जाएगा वापस और गिल भी आ जाएगा वापस. ओ पंत तो अभी से वापस है, सॉरी. क्या हो गया? पंत तो है ही है, गिल भी आ जाएगा. तो वो दो हीरोज थे गैबा के लास्ट टाइम के. They're gonna have that confidence. नहीं, बाय सेकंड या थर्ड टेस्ट तक ना इंडिया की मुझे लगता है फुल टीम अवेलेबल. और पता है ये थोड़े बैटल हार्डन हो चुके होंगे और they'll be better. और फिर मुझे तो शक है थर्ड टेस्ट में आ जाएगा शामी. आ जाएगा तो आ जाए, मजा आएगा ज्यादा. नहीं तो इंडिया को एडवांटेज है ना. We want the best players to play this series, right? रोहित शर्मा भी वापस आ गया, गिल भी वापस आ गया, शामी भी वापस आ गया ना, तो that's a team. And yeah, so that's why I'm looking at that Gabba test and I'm thinking, okay, India, maybe I can expect a thing or two from you over here. Yeah. And even Adelaide, you never know. It's kind of 50-50. एक तरफ Mitch Stark with the pink ball, एक तरफ विराट कोहली in Adelaide है. फिर आ गया जी MCJ. This is that one venue where I would favor India. I don't know. It's a batting track. It is ठीक है? batting track. तो इंडिया की बैटिंग तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर जाती होती है. स्टीव स्मिथ. और फिर हाँ, स्टीव स्मिथ तो खैर सिडनी में आओ ना, वो तो सिडनी का बादशाह है. तो MCG में मुझे लगता है कि if it comes down to a batting track, Jasprit Bumrah is going to be the best bowler on show. हो सकता. And if that happens, then I could back India to win that game. So पता let's क्या- hypothetically assume कि हम सिडनी पे पहुंच गए 2-2. Let's हाँ. hypothetically assume that. सिडनी जीत जाएगा इंडिया. Spin track होता है, Ashwin will play there. सिडनी जीत जाएगा. अच्छा मुझे एक चीज बता, why is Kuldeep Yadav not a part of this squad? apparently injured था. अभी तक. Because they could really use him in Sydney, सारी. apparently injured था. अब खैर 5 और- टेस्ट तक क्या पता आ जाए. कोई पता नहीं, अति सुंदर भी खिला दें सिडनी में. ब्रो मुझे बताओ अक्षर पटेल अगर क्यों तुम नहीं जो है स्क्वाड में? नीतीश कुमार रेड्डी को तो तुम जगह दे रहे थे, वो तुम सुंदर को दे दो. हाँ वो तो फिर ऑब्वियसली टेस्ट बाय टेस्ट चेंज होती रहेगी. अच्छा तो फिर मुझे बताओ अक्षर पटेल क्यों नहीं? अक्षर पटेल भी नहीं है वाकई. अक्षर पटेल को होना चाहिए था इस been a सीरीज bit hard done by, में. इस isn't सीरीज he? में होना चाहिए था. Yeah. वो और है भी- मैं तो कुलदीप अक्षर को प्लान्स में रखता अपने, but अक्षर- Washington has leapfrogged those guys because he can bat better. I don't know man, अक्षर इज अ ग्रेट बैट. Akshar pretty good bat, very clutch bat. हाँ और So, yeah. अक्षर की हाइट भी है, ठीक है. सुंदर की भी हाइट है. सुंदर ऑफ स्पिन है, ये आपको लेफ्ट आर्म स्पिन सेम सिमिलर प्रोफाइल एज जडेजा, लेकिन उसकी हाइट का एडवांटेज उठा सकते थे बिल्कुल. और सिडनी में बड़ा क्रूशियल हो सकता था. हाँ, और अभी उसने मतलब T20 वर्ल्ड कप में ये भी दिखाया कि प्रेशर Pressure सिचुएशंस situations. में अक्षर पटेल चल जाता. अक्षर पटेल पाकिस्तान के खिलाफ चला था, अक्षर पटेल फाइनल में चला था. बिल्कुल. हाँ. और फाइनल में वी ऑल रिमेंबर कोहलीज नॉक पर प्रेशर उतारा था अक्षर अक्षर पटेल ने ने. हाँ.
Yeah, you're right. I would make a case for both of those guys to be in the squad, but I guess क्योंकि Australia था तो they went with more pacers and that's what happened. Okay, so I think we very well might be in a situation where Sydney Test पे 2-2 हुआ. In a situation in a heaven, yeah. Oh, you are. Much love to the Despacito kid. हाँ, कोई पता नहीं. मुझे feelers आ रहे हैं. अच्छा. I feel like Australia might start on a positive note and then India fights back and then we might be brilliantly set up for a clash final finale type situation in Sydney. अच्छा, मुझे नहीं आ रही है वाले. मगर SCG में ना स्टीव स्मिथ जो है ना, स्टीव स्मिथ और उजी, मैंने लिस्ट भी ऐड कर दी. हाँ, स्टीव स्मिथ, हाँ, उजी भी चलता है उजी. और बाय द वे ही इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन सीरीज. bro. नई बॉल को ब्लंट आउट करने में उस्मान ख्वाजा का बड़ा हाथ होना. अच्छा, हमने उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात कर ली थी इंडिया की. तुम्हें क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स? Try a mate. That's a tough one, Sadi. I would say one of them obviously has to be Steve Smith because he's Steve Smith. स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, and probably Pat Cummins, man. Cummins, Yeah. ये 3, yeah. यही बनते हैं मेरे जहन में, तो यही आ रहे हैं. Oh, you never know, Nathan Lyon is there. And he's a fantastic spinner in Australian conditions. Weirdly. वो ओवर स्पिन करता है और उसको बाउंस भी मिलता है गैबा पे ना. Gabba. वॉच आउट फॉर नेथन लायन एज वेल. गैज क्या बड़ी एक क्या सनसनीखेज किस्म की सीरीज हमें आगे नजर आ रही है. मजेजेस होने वाले. मजेजेस होने वाले हैं भाई, बहुत मज्जू आने वाला है. और प्रेडिक्शंस पे आ जाएं. Are we done with everything? I think so, man. I think it does seem like we've exhausted all those talking points. One repetition होने लग जाती है. In a repetition in a heaven, yeah. Oh, you are. अच्छा जी. अच्छा. तो Top run scorer of this series. अच्छा, am I going first? Yeah. Yeah, I am just going to have to go extremely safe here and say Steve Smith. अच्छा. He averages 65 plus versus India, man. मैं बताऊं? Uzi. अच्छा, interesting call. Uzi. ठीक है. Yeah. Top wicket taker Sadi. This is a tough one. Safe bet तो बुमराह है. मैं तो जा रहा हूँ बुमराह के लिए ही. My pick is Jasprit Bumrah. I'm going to go with Josh Hazelwood. Interesting. So, very, very interesting fact over here is that in the last little while, when you look at Cummins, Hazelwood and Stark, their most successful, Australia's most successful seamer amongst the 3 has been Josh Hazelwood. So I think that's a very good pick. Yeah. I'm going to go Bumrah because I feel like he'll be taking the bulk of wickets for India. Bumro, शाम रंग बुमरो आए हैं इस नदिया में. एक तो मुझे लिरिक्स नहीं आते होते. उस दिन भी तुमने वो मेरा किताब वाला लगा दिया था. Oh, by the way, सादी घड़ी रुक गई है. हाँ, रुक गई. I complimented his watch. 1-2 घंटे बाद घड़ी हल्का सा स्लो हुई, अब रुक गई है. So my jinx is fatal. वक्त थम गया है. और मैंने शायद बुमराह और स्टीव स्मिथ को भी हैवी जिंक्स मार दिए यहाँ पे. वक्त थम गया है, ब्रो. अच्छा, वक्त रुक गया है. सूरज हुआ मध्यम, वक्त थमने लगा. अच्छा. स्कोर लाइन. हाँ, फाइनल सीरीज प्रेडिक्शन. I'm going to go 3-2 Australia. 4-1 Australia. 4-1 Australia. मैंने लास्ट टाइम भी अच्छा, मुझे लगता है थोड़ी और competitive होगी and I feel like India is going to come back into this. We could be wrong. This might sound like conjecture towards the end of it. और predictions है यार. हाँ, तो मुझे लग रहा है 3-2 Australia, but I expect this series to be fought tooth and nail. हाँ. और मैं बहुत ही शानदार क्रिकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. The entire world will be watching. Like we said, it's one of the most premier test series in the world. Ashes और BGT हैं इस वक्त. Thank God for TapMat though. Yeah, thank God for TapMat, honestly. And हाँ, सुबह उठकर देखनी पड़ेगी. TapMat sponsor us. Yes, please TapMat. इतना क्या हो गया? आप लोग भी बताओ यार हमें टॉप रन स्कोरर, टॉप विकेट टेकर और स्कोर लाइन की प्रेडिक्शन in the comment section below. Unbiased, please. Yeah. And क्रिकेट को सोच के. और मतलब I mean, you know, the commentary will be exciting. Ravi Shastri is there Ravi. already. और प्रोमो यार आया उनका तो देखा था. बड़ा जबरदस्त. Like I said यार, पिछले अगर 20 साल में देखो तो बहुत ज्यादा लोर है इस वाली इस पर्टिकुलर राइवलरी में. लोर तो लोर है. हाँ, लोर है और स्मोक कम हो गई लोर में. So yes, expectations कराची में ज्यादा हो गई है. Shout out to बिलावल भुट्टो जरदारी जो कह रहा था Dear Pakistanis move to Karachi when जब कराची कम थी. वाओ, बर्नर शर्नर फोन पैक कर लो साथ अगर मूव करना है तो. क्यों? मैं तो डरता हूँ भाई. हाँ, मैं भी डरता हूँ लेकिन छिन जाते हैं फोन. Throwing no shade to Karachi, just throwing shade to Bilawal. कराची में मैं बहुत टाइम गुजारा. I love Karachiites, some of the most progressive people in Pakistan. And the best food. And also the city is lit. No one's arguing that.
best food in the country. It's been said now. Pro sports maybe the पे- world. प्रो स्पोर्ट्स पे अप्रूव हो गया कि पाकिस्तान का बेस्ट खाना कराची का खाना. मैं तो शुरू से कहता हूँ. सो आई एम सॉरी लाहौरीज. हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं है कराची से. हाँ दोनों हम तो इस्लामाबाद के बच्चे. और लाहौर चलो मेरी पिछली फैमिली अगर तुम पिछली फैमिली भी थी तुम्हारी कोई. मतलब क्या कहते हैं उन्हें एंसेस्टर्स. या उर्दू में मैं सोच रहा था क्या अबाओ अजदाद. अबाओ अजदाद जो तो वो मुझे वैसे सही स्पॉट पे याद आया. आसान लफ्ज नहीं था. तो वो है मतलब लाहौर से कराची से कोई ताल्लुक नहीं. ह्यू ट्रैप लंदन से ताल्लुक नहीं तुम्हारा. अच्छी स्वेटशर्ट है. या आज हमने दोनों स्वेटशर्ट गेम ऑन किए. जरा सर्दियां हो गई हैं यहाँ पे. अच्छा. हल्की सी खुनकी हो गई है. इट्स गॉटन अ बिट nippy. निपो ये लोग तंग आगे होंगे अब. तुमने वो आकिब के देखे थे तेज निप्स in that picture, razor sharp. That was freaking crazy. Yeah, this podcast is getting a bit out of hand now, so I think we should just end it. Yeah. आप लोगों को मजा आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेनाम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. और मैं बताना भूल गया यार, दी ओरिजिनल्स जूते जो हैं theoriginals.com.pk उस पे जा सकते हैं आप और जाके आप जूते लें. और यार एक फोन था. फोन बाद में करेंगे. चलो फोन बाद में फोन करेंगे. इस वीडियो के लिए नहीं है. ठीक है सॉरी. हाँ. और हाँ, डिस्कॉर्ड आप एक तो उसके पेट्रियन के थ्रू बन सकते हैं और इजी पैसा के थ्रू भी बन सकते हैं. 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा हमारी बूथियाँ पसंद ना आई हो तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी हमें सुन सकते हैं. और यार बस बीजीटी के लिए इंतजार करो. और हाँ, वो विक्रांत गुप्ता को बता दें कि BGT स्टैंड्स फॉर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी. थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट ओवर हियर. यहाँ पे तो गुप्तगू जरा डीप चलेगी. न थी गुप्तगू अल्लाह हाफिज. गुप्तगू. अल्लाह हाफिज.